So, in last lecture, we go through the normality test, how you can just check the whether your data is normal or not, and we have just do the coding of the all the data. So you can just do the coding like that. And another variable we have added. You can also just give the name, or if you want to delete it, that you can just clear it. So variable will be removed here if you want to clear any variable. So we have do the coding here. Like that, 1 for strongly and satisfy, 2 for satisfy, like that. Then for the gender we assign the value 1 for the male, 2 for the female. Then same like the marital status, then the gender. If you have any other variable you can add, and you can do the same like that. If you have any other variable like the occupation, then you can just do the government employee, private employee, self-occupied, like that. You can add the variable. So but the coding is required. Without coding it will not read the data. It read only the numerical data. You have to assign the numerical value to all. Okay, so after that we go through the descriptive. You can just check the frequency from here, and descriptive statistic, mean, median, standard deviation, or plots you can find out. You can also to check the plots from there in the. You want to just apply the one sample t-test. How you can apply the one sample t-test? Just go to the analyze, but you have to be just satisfy the all the assumptions of that the t-test. So it's saying that your dependent variables must be the continuous data. Interval or ratio data should be there. First condition, first assumption was there. Secondly, the dependent variable should be independent variable not be related to any other observations, and the data should be normally distributed. These were the assumptions. These were the assumptions for that. So in that case, you have to go to the analyze, then go to the compare means, then select one sample t-test, click on that, then test variable is there. So test variable you have to be just test any variable, gender, because the t-test only be applicable only the two groups. So gender you also have two groups, one is the male, another is the female. The marital status also have the two groups, the married and unmarried. So you can just apply. Firstly we have to check on the gender. You can just go to the gender like that, and test value you can just put the test value on which value you have to test. So on the this is the gender, so we don't have to put anything. Or for example you have to be just uh, apply that test on the a different scores of the 10 students in the classroom. ये क्लासरूम के अंदर 10 स्टूडेंट का स्कोर है, एवरेज स्कोर है, या जो भी स्कोर लिख रखा है 10 स्टूडेंट का, उसके ऊपर आप चेक करना चाहते हो, तो टेस्ट वैल्यू में आपको डालनी पड़ेगी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड क्या है। मेरा एक्सपेक्टेड 60 है और बाकी क्लास की जो भी मार्क्स है, तो इस वैल्यू के साथ उसको हम टेस्ट वेरिएबल को कंपेयर करेंगे, वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मीन डिफरेंस बिटवीन दैट वैल्यू और द एक्चुअल दे हैव रिसीव्ड, और वी हैव पुट द सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, कि हमने स्टैंडर्ड पुट कर दिया यहाँ पे, मान लो 80, टेस्ट वैल्यू में 80 कर दिया, 80 के साथ फिर कंपेयर करेंगे, हर उसको ऑटोमेटिकली वो कंपेयर करेगी, कंपेयर करके हम टेबल जनरेट होगी, so that will see the whether there is significant difference between the both the values or not. On the basis of that we will just test the hypothesis. आप ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में जाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस जो इंटरवल परसेंटेज है वो 95 रखनी है, मीन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको लेके चलना है। अगर 90 करोगे यहाँ पे तो आपका 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा, अगर 99 करोगे तो आपका 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा। कंटिन्यू। बूटस्ट्रैपिंग की जरूरत है नहीं यहाँ पे, आप कंटिन्यू करो, देन ओके करो। अब इसमें नीचे जाओ, अब देखो ये आपकी जो सारी की सारी वैल्यूज आ गई। आप सिग्निफिकेंस यहाँ पे मीन डिफरेंस देखो क्या था इसका, 1.40 है मीन डिफरेंस, ठीक है। और ऊपर भी देखो वन सैंपल टीचर्स में आपका मीन वैल्यू 1.40, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.516 है। अब टीचर्स हमारी जो जेंडर की आई है वो 8.573 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9 है,
और सिग्निफिकेंट टू टेल टेस्ट में 0.000, तो इट मीन्स दैट इज द लेस देन 0.05। तो आपके जो मीन डिफरेंस है, देयर इज ए सिग्निफिकेंस मीन डिफरेंस बिटवीन द ऑल द ग्रुप, मेल और फीमेल दो ग्रुप थे जेंडर के अंदर, तो उसके अंदर ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है दोनों के, मेल और फीमेल दोनों के अंदर, दोनों के ओपिनियन में देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगर ये सिग्निफिकेंट टू टेल टेस्ट में 0.05 से ज़्यादा वैल्यू आती है, तो आप कह सकते हो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो मीन डिफरेंस बिटवीन द बोथ द मेल एंड फीमेल। आप इसके अलावा कोई और दूसरा भी लगा के देख सकते हो, दूसरी वैल्यू, या सारा एक साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। वन सैंपल टी टेस्ट में गया मैं, बाकी को भी आप इसमें एक साथ डाल सकते हो, कर सकते हो, इसकी एक साथ टेबल बन के आपके पास आ जाएगी इसमें। तो इसमें सारा का सारा देख लो सिग्निफिकेंस आ रहा है, सारा का सारा जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट है। अब आपने, मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ। हम गए टेबल्स में, कंपेयर मीन्स में वन सैंपल टी टेस्ट में, और सिर्फ ले लिया ये एक, ये ले लिया हमने स्टेटमेंट वन। अब स्टेटमेंट वन है, हम चाहते हैं कम से कम 4 सेटिस्फाइड तो हो कम से कम, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 4 इसकी, 4। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 4 कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारा स्टैंडर्ड है, कम से कम 4 होना चाहिए। अब 4 से हर एक रिस्पोंडेंट को कंपेयर करेगा वो कि 4 के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है, उनका एवरेज कितना था और 4 के और उसके बीच में कितना मीन डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया कि 4, कम से कम 4 तो सेटिस्फाइड तो होने चाहिए जो कस्टमर है वो। तो फिर मैंने उसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो, अब इसमें जो हमारा जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है 0.05 से तो ज़्यादा आ गया, 0.16 आ गया, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बिकॉज यहाँ पे देखो मीन डिफरेंस तो हमने कितना बहुत ज़्यादा आ गया, माइनस में गया 0.600, और यहाँ पे मीन आ रहा है हमारा वन सैंपल टी टेस्ट में, देखो ऊपर स्टैटिस्टिक 3.40 आ रहा है, हमने लिया था कितना 4, तो 4 से तो बहुत कम आ गया ये, 4 लिया है उस 3.40 है, तो उसका डिफरेंस कितना माइनस में गया, 3.40 माइनस 4, टेस्ट वैल्यू 4 है और मीन वैल्यू हमारी आई 3.40, तो 3.40 माइनस 4, तो हमारी तो ये माइनस 0.60 आ गई मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस तो बहुत कम आया माइनस में, तो हमारा अपने आप ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यूज ऑफ द एक्सपेक्टेड एंड स्टैंडर्ड। तो ये कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन द बोथ द बिटवीन द ऑल द between the frequency we have decided and between the object value and the standard value। तो ये हमारा मीन डिफरेंस माइनस में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू देखो, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस है टू टेल्ड है, टू टेल टेस्ट है, इसमें हम पी वैल्यू, इसी को बोलते हैं पी वैल्यू, जो सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं ना, इसी को हम पी वैल्यू बोलते हैं। पी वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो हम कह सकते हैं देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अगर नहीं है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। यहाँ पे देखो इसमें मीन वैल्यू हमारी वन सैंपल स्टैटिस्टिक में 3.40 है और टेस्ट वैल्यू हमारी 4 है, हमने 4 मानी थी, ये हमारी स्टैंडर्ड रहेगी, और उससे भी कम आई है तो हमारा माइनस में मीन डिफरेंस इसका। एंड यू कैन जस्ट पुट ऑल द स्टेटमेंट, कंटिन्यूस डाटा शुड बी देयर ना। वन सैंपल टी टेस्ट, ये भी हमारा कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है हमारा, तो टेस्ट वेरिएबल्स उसमें था कि हमारा कम से कम वो होना चाहिए कंटिन्यू रेशियो, या जो इंटरवल स्केल पे होना चाहिए। इसमें हमने 4 कर दिया, 4 तीनों के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं, यू कैन सी लाइक दैट। अब सभी के अंदर जो है 0.05 से सिर्फ ये हमारा जो दूसरा, हम्म, हाँ, 0.05 से ये स्टेटमेंट वन तो हमने ऊपर निकाली थी वही सेम है, ये वाली देखो, इसमें 3.40 थी, इसमें 2.80, इसमें 2.90। अब इससे हम कंपेयर करेंगे 4 को, तो सभी में देखो लगभग ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मीन डिफरेंस सबका माइनस में है। अगर पी वैल्यू देखें तो पहले वाले की 0.168 है,
ये मोर देन द 0.05 है, तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब इसमें S2 में देखें तो ये 0.09 है, ये कह सकते हैं हम कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि इसमें वैल्यू हमारी 0.05 से कम है, ये 0.09। दूसरी है फिर 0.012, 0.012 ये भी 0.05 से कम वैल्यू है, ये भी हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट ऊपर वाले में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बट इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द बोथ expected and standard value. Clear? सर दिस स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एंड वीक कोरिलेशन ये पी वैल्यू से ही पता चलता है? हाँ, जो कोरिलेशन वाला नॉर्मल अभी तो पता चलेगा, नाउ यू आर when you the relationship or the association between the two variables, then we will apply the correlation. Okay, the correlation one that will be the continuous, the condition. And the correlation the same p value we will just calculate from the r value and the p value as well as. R will show the value the correlation, how strongly the correlation is that, and p value says that there is actually there is a correlation between both the variables or not. It also says the degree of correlation as well as the magnitude of the correlation, positive or negative. Okay. Correlation values always lie between -1 to +1. On the basis of that, we can just calculate we can interpret the tables. So when we just we go through that correlation topic, then I will just tell you the each and everything. The correlation, the regression analysis, linear regression analysis, multi-correlation, multi-regression analysis, like that. Yeah, that's all for today.